And thus he, with his reservoir pen, has got in the den to pave the plinth of his poetic plots, reviving his old times at the 11th hour of his life, in the sleep before utter sleep. In his dreamland so vast and uncommon, he left to ride on the pillion of the involuntary horse of soul from the darkened room's gate, un- unopposed, uncaptured, unalloyed, to greet the quintessence of the scenery in fresh freedom. और इस प्रकार वह अपनी फाउंटेन पेन को लेकर अपनी काव्य कल्पना के विषयों के स्तंभों की नींव बनाने के लिए अपने अतीत को मन में दोहराते हुए जीवन के अंतिम चरण में चिर निद्रा की प्रथम निद्रा में अपने निजी कक्ष में आ गया। अपनी विस्तृत एवं असामान्य स्वप्न के संसार में वह आत्मा के अनियंत्रित घोड़े के पीठ पर बैठकर अपनी अंधेरी कोठरी के दरवाजे से बिना रोके और टोके गए एवं बिना अवरुद्ध किए गए एवं निष्पाप भाव से नव स्वतंत्रता के साथ दृश्य की पवित्रता का स्वागत करने के लिए निकल पड़ा है। द मैन इन हिमसेल्फ श्रीकिंग थ्रू द boulevard kenned the bullocks of men in the yoke of duty, plowing the land of work by the plow of time, and all this done by great God to give birth to the new generation, either laureled by their pair or alone, with shedding the cold sheets from the forehead in the field of life. We are in the process of sophistication of our lives. When he drew himself to the workshop of hellish bodies brought there to suffer by repairing them, he added, in the workshop that is hell, we are always from dark to light, from untruth to truth, and from death to life. If we go right ways, we find ourselves in the showroom well sophisticated called heaven. Or else, if we go wrong ways, he thought, we find ourselves fully defiled and profane, to be fallen in downward life of animals, birds, reptiles, aquatic and insect lives, out of a fully cleansed life of man, to be in position of hellish getting dived in hell. We have both chances, either black or white, by the effect of our tendency germinating in our body. In the body, the worse for wear, but mettlesomely proceeded he by soul, in splendidly fluorescent days between the ridges, swaying in jubilation in the pride of morning, showing that rocks also be the preservative of petty small flowers tenderness. वह स्वयं छायादार चौड़े मार्ग पर अपने मन में चीखता हुआ मनुष्य रूपी बैलों के द्वारा कर्तव्य के जुआठ में समय के हल से कार्यों की भूमि को जोतता हुआ, और यह सब ईश्वर के द्वारा जीवन के मैदान में अपने जोड़ों सहित या अकेले ही माथे पर ठंडे पसीने की ढुलकती हुई बूंदों के साथ नई संतानों की उत्पत्ति के लिए हो रहा कार्य देख रहा था। जब उसने नरकगामियों के मरम्मत कार्य कक्ष में अपने आप को प्रविष्ट किया, तो वहां मरम्मत के लिए नरकगामी शरीर उपस्थित थे। उसने कहा, हम यहाँ पर अपने जीवन के सुधार क्रिया के प्रक्रम में हैं। यह कार्य कक्ष जो नरक कहा जाता है, उसमें हम हमेशा अंधेरे से प्रकाश की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ
और मृत्यु से अमरता की तरफ के जीवन के प्रक्रम में हैं। यदि हम सही रास्ते पर हैं तो हम सबको एक सुधरा हुआ संसार मिलेगा जो स्वर्ग कहा जाता है। यदि हम गलत रास्ते पर हैं, उसने कहा, तो हम अपने आप को पापमय एवं दुर्गुण युक्त गंदगी में पाएंगे जो हमें जानवरों, पक्षियों, सर्पी जंतुओं, जलचरों एवं कीट पतंगों की अधम योनियों में लाकर पतित जीवन प्रदान करेंगे, जो सुसंस्कृत जीवन से सर्वथा पृथक होगी, और तब हम नरक में होंगे। हमारे लिए दोनों अवसर हैं जो हमारे मन में अंकुरित हो रहे विचारों के झुकाव से उज्जवल अथवा कालिमामय जीवन प्राप्त करने का कारण बनते हैं। अपने जर्जर शरीर के साथ पूरी शक्ति से अपनी आत्मा के बल पर वह पहाड़ों की चोटियों के मध्य वादियों में लहराते हुए सुगंधित फूलों के आनंदमय साम्राज्य में शानदार ढंग से सुबह के सुहाने समय में प्रवेश किया। उसे यह प्रतीत हुआ कि पहाड़ों की चट्टानें कह रही हैं कि पत्थर भी छोटे छोटे फूलों की कोमलता का परिरक्षण कर सकते हैं। Now his decrepit flow of dream went slow to intangibility and stuck to seesaw in a park, only the game of children, but enforcing to think its great consequences according to the patterns of godly systems has changed the name of continuity. His dream grew sweety, and his mind frame began to totter. He wanted some water, but who could care such a vagabond with such a feeding demand? His dreams rushed to a pond to lick the body of water. But what? The fish began to gyrate to look such a dreamy pirate. His hunger made him surly. Now he betook himself to someone's kitchen to be fed, and entered through the door after having his hand on the pot. This sense clot got his fingers burnt on so hot the pot. His fire of hunger cooled down with returning back to his back. He had still a great burning in his mind that was flooded with abnormal obliquities. अब उसका जरा क्षीण स्वप्नवत प्रवाह धीरे धीरे अमूर्तता की तरफ गतिमान हुआ और एक पार्क में सीसा नामक खेल के साधन पर जाकर अटक गया, जो देखने में एक बच्चों के खेल का साधन मात्र था, किंतु सोचने पर बाध्य करने वाला था कि ईश्वरीय विधान के अनुसार परिवर्तन ही शाश्वत है, उसका सबसे महिमामय प्रतिफल है। स्वप्न में उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया, उसका मस्तिष्क चकराने लगा, उसे जल की इच्छा हुई, किंतु इस दर दर भटकने वाले की शिशु तृष्णा को कौन तृप्त कर सकता था। वह स्वप्न में जल स्पर्शन के लिए तालाब पर भागा, किंतु मछलियां उसे एक स्वप्निल दस्यु समझकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। उसकी भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। अब वह अपने आप को किसी व्यक्ति के रसोई घर में तृप्त होने के लिए ले गया और उसमें दरवाजे से होकर प्रवेश किया। उसने जैसे ही पात्र पर अपना हाथ रखा, इस मूर्ख ने उस गर्म बर्तन पर अपनी अंगुलियों को जला दिया। उसे वापस अपने घर चले जाने के बाद ही उसकी भूख शांत हो सकी थी। उसके मन में अब भी जलन का भाव शेष था, जिसमें नैतिकता के प्रति घृणा असामान्य रूप से उमड़ रही थी। He was now going to come in his private room to smooch his bed with love for far-sunderance of the shelter that made him sick for its sake. Now, flapping the wings of hope, he decided, no matter what times or conditions may occur, to face in deathly race. Now he had himself be placed on his bed and his wife on footside, with vermilion shining awfully azure. He broke in words
with her. Now you are here. Let you be like this. Never. Go, my dear. Never go. Live like so. And tried to fondle her, but adverse to his thought, he found himself be not. No dreams, no rock, laid in havoc. अब वह अपने निजी कक्ष में जाकर प्यार से बिस्तर को चूम लेने के लिए तैयार था, क्योंकि काफी समय से इस आश्रय से वियोग की स्थिति ने उसे वियोगी बना दिया था। अब वह आशा के पंखों को फड़फड़ाते हुए किसी भी प्रकार के समय एवं स्थिति से मुकाबला करने का एवं इस मृत्युकारक दौड़ को जीतने का निश्चय कर चुका था। अब उसने अपने आप को बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। उसके पायताने उसकी स्त्री गहरे नीले रंग के सिंदूर से अपनी मांग को चमकाती हुई प्रतीत हुई। उस व्यक्ति के भर्राए हुए स्वर स्फुट रूप से निकल पड़े। तुम आ गई हो, तुम ऐसे ही पड़ी रहो मेरी प्रिय, तुम मत जाना, ऐसे ही रहो। फिर वह उसे प्यार करना चाहा, किंतु तभी उसने अपने विचारों के विरुद्ध पाया कि वह नहीं है। न तो स्वप्न, न ही स्पंदन, मृत पड़ा था तन।